Good afternoon, everyone. Yes, I welcome you all into the new class. And please, everyone, switch on your videos. Yes, so this is the request from my side. Please, everyone, Gurkaran, Amritpal, Ashray, and Gurpreet. Please switch on your videos. So that is the practice that we are following. Yes, I am requesting again Ashray, Amritpal, Gurpreet, Jasmine, and Gurkar. We'll just wait for a couple of minutes for others to join in. So today we are going to focus on MySQL functions. So you all are aware with the MySQL functions. Yes. Yes, Mr. Gurkan. Yes, I'm requesting again, please, everyone, switch on your video mode. Hamraj, Sujivan, Payal, then Gurpreet Singh, Ashray. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Yes. So Payal is able to switch on her video. Yes, I request others also. Mr. Gurkan, Jivan has already done this. I am waiting for the others to basically fall in line and please do the required.
So without wasting the further time, so we'll move towards the MySQL. Yes. So anyone can say a bit about the what do you mean by MySQL? In MySQL, what do you mean by constraints? What are constraints in MySQL? Yes, anyone? So these are the conditions which are applied. Yes. So what are the now the question goes to Mr. Inderveer. Inderveer, you tell me name any few constraints that are there in MySQL, available in MySQL. Yes. Inderveer, would you like to answer? Or we may call the services of Pile. Yes, Pile, are you able to listen me? Yes, sir. Yes. So Pile, you tell what are the few different constraints which are available in MySQL. Primary key, foreign key, Mhm. unique key, Yes, yes. not null, Not null. And unique, check. unique check. Yes, Indraveer, now you are able to respond back. Yes, sir. I think my network speed is slow. हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज हमें सुनाई दे रही है. नेटवर्क की स्लो, इसका कोई चक्कर नहीं है. डोंट लुक एट द नेटवर्क. Listen my question properly. What is the difference between the primary key constraint and unique key constraint? Yes, Mr. Gurkaran. Gurkaran, Mr. Hamraj, Gurpreet Singh, Sukhjeevan, Amritpal, Mr. Amritpal. Yes, sir. Please could you repeat the question? मेरा क्वेश्चन है कि प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? Yes, So primary key is a column in a table which has all the unique values and it cannot enter any null value even. And the values cannot be repeated. And the unique key, whereas it can accept the null values also. Yes, yes, that is in. तो ये अमृतपाल ने भी ये आंसर लिखा हुआ है. I think Amritpal is shying away from answering the question, but he has written the right answer. So looking at the other constraints, what is a check constraint? Anyone who wants to say something on check constraint? Sheetal is there. I don't know why she is not putting up his video mode active. और एक ये मनु नाम से कौन है? ये मनु के who is this? Yes, anyone who wants to say on yes, Payal आप बताओ. What do you mean by check constraint? सुना कभी नाम check constraint का? अब ये नहीं पता चल रहा कि किसका नेटवर्क ऑफ हो गया है साथ में. और विदाउट yes, there is a few person in waiting also. Mr. Ashray.
यस, सुखजीवन आप बता Yes. सकते हो, आप बता सकते हो व्हाट इज चेक कंस्ट्रेंट? Yes, sir. Hmm. Sir, in check constraint, we apply a condition on a particular column, especially the numerical condition, to check whether the particular column contains those values, or are they satisfying that condition or not. Yes, yes. So especially those numerical Numerical, ये conditions, basically like check ये whether this is equal to this or not. यस, ये एप्लीकेबल ही न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर होता है बेसिकली। जैसे हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि हमारे जो रोल नंबर है वो 101 से शुरू होने चाहिए और दे शुड नॉट गो बियॉन्ड 999, ठीक है, 101 से लेके 999 के बीच में ही रहने चाहिए सारे रोल नंबर, तो हम वो चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। ऐसे जैसे बच्चों की फीस है, तो हम चाहते हैं कि फीस जो है, हमें पता है कि फीस इसी रेंज के बीच में होती है, सो वी कैन पुट ए कंस्ट्रेंट ऑन फीस आल्सो, ठीक है। तो किसी भी हम न्यूमेरिक एट्रीब्यूट के ऊपर, जैसे हमारे मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि पहले तो हमें जो हमारे मोबाइल नंबर थे मोस्टली 98728 इस सीरीज से चलते थे, तो मोबाइल नंबर के ऊपर किसी भी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट के ऊपर हम वो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, और ये लिखा भी है बाय मिस्टर अतुल, चेक कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू इन ए वैल्यू रेंज इन ए कॉलम। तो बेसिकली ये रेंज को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ही हमारी वैल्यूज रहे, इससे बाहर वाली वैल्यूज को हम एक्सेप्ट ना करें, उसके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और द क्वेश्चन गोज टू मिस्टर इंद्रवीर। इंद्रवीर आप बताओ चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? Sir, it specifies a default value when there is no input added by user. यस यस यस। तो जिस केस में अगर हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा यूजर, तो उस केस में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी? डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। और एक सिंपली जो हम और जो कंस्ट्रेंट यूज करते हैं वो होता है नॉट नल। तो नॉट नल का बेसिक पर्पस है कि हम कोई नल वैल्यू को असाइन ना कर पाए किसी भी एट्रीब्यूट। जैसे नेम है, तो नेम के ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि नॉट नल, कि कोई नल वैल्यू ना असाइन कर दे इन केस ऑफ ए दैट नेम कॉलम, सो लाइक दिस। तो these are the basic constraints that we have in MySQL। जस्ट मैंने थोड़ा सा रीब्रश करने के लिए MySQL का एक क्वेश्चन उठा लिया ऑन कंस्ट्रेंट्स। और जो बेसिकली फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आई विल नॉट टेल इट थ्योरेटिकली, स्पेसिफिकली कल एक आधे दिन में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक हम स्टूडेंट टेबल लेंगे, एक हम फैकल्टी टेबल लेंगे, और उसके अंदर हम एप्लीकेबिलिटी देखेंगे हाउ दी फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज बेसिकली अप्लाई। तो कम से कम ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वाइवा में भी आ सकते हैं, और अगर हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा होगा, सो देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दी क्वेश्चन। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, वी विल डू इट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास में कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्यू ऑफ द फंक्शंस इन MySQL। ऑलरेडी ये हमने कर लिया हुआ है, बट हमने प्रैक्टिकली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है उसके लिए हम आज कर रहे हैं इसको, बिकॉज वी माइट नॉट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लास, ठीक है जी। तो जैसे ये सबसे पहले हमारे पास है मैथमेटिकल फंक्शन है राउंड फंक्शन। सिलेक्ट दिस राउंड फंक्शन एंड वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक दिस नंबर 6 7 8 9 3 4 5। दिखाई दे रहा है ये? Yes. So are you able to view this? Yes, sir. ओके ओके। तो ये है, इसके अंदर क्या है, राउंड फंक्शन के अंदर हम ये लेते हैं कि जैसे ये तो हमारे पास नंबर हो गया, पहले नंबर है, और सेकंड पैरामीटर होता है दैट हमने कितने डिजिट्स को हमने रिजल्ट में रखना है। क्लियर? जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो हैं दे शुड बी रिमेन इन द रिजल्ट। अब 2 डिजिट के बाद जो थर्ड डिजिट है दैट विल बी चेक कि वो 5 या 5 से बड़ा है। सो इन दिस केस दिस नंबर इज, थर्ड नंबर जो है ये 5 या 5 से बड़ा है।
सो जो उससे नेक्स्ट वाला नंबर होगा, नाउ दिस विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो वी जस्ट सी द रिजल्ट. ये इसका रिजल्ट क्या आ गया? देखो आंसर में हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए हैं? 2 डिजिट्स आ गए हैं, और डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है दैट हैज बीन इंक्रीमेंटेड बाय 1. अगर इसी क्वेश्चन को हम यस अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यस पायल वुड यू लाइक टू आंसर दिस वन? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्राई गैस करो इसका आंसर क्या आएगा. अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूं, व्हाट विल बी द आंसर? अनम्यूट करो एंड ट्राई टू. 678.3. 0.3 3 आएगा या 0.4 आएगा? Yes, yes. Someone else wants to make it try. So the answer would be 678.3. 0.3. तो इंद्रवीर ने सही आंसर किया था. सो ठीक है जी. बिकॉज ये देखो कि जो इसके नेक्स्ट डिजिट है दिस इज दैट 5 एंड मोर देन 5. तो ये राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा. ठीक है. एक इससे मिलता जुलता ही जो फंक्शन है दैट इज द ट्रंकेट फंक्शन. नंबर वही रख लेते हैं, और पहले हम 2 नंबर तक को कर लेते हैं ट्रंकेट फ्रॉम. ये ड्यूअल टेबल जो है ये बिल्ट इन टेबल है इसके अंदर. ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं बस. ठीक है. ये क्या करेगा? जस्ट 2 डिजिट्स को डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को रख लेगा, बाकी सभी डिजिट्स को ट्रंकेट कर देगा, रिमूव कर देगा. और इसमें कुछ भी इसमें राउंडिंग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर. सो जस्ट एंटर दिस वन, और ये truncate function does not exist, so we might have spelled it wrongly. तो ट्रंकेट के केस में ये पूरा ही लिखना पड़ता है ट्रंकेट. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं इसको 1 डिजिट तक करता हूं तो एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, और इसमें कुछ राउंडिंग ऑफ तो होना नहीं है इसके अंदर. और मैं अगर इसको 0 कर देता हूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? यस यस अनम्यूट करो पहले अपने आप को. अनम्यूट एंड देन आंसर. सो अमृतपाल हैज गिवन द आंसर. अमृतपाल यार तू वॉइस मोड से आंसर कर दे. व्हाई यू आर यूजिंग दिस चैट ओनली? ठीक है. अमृतपाल का आंसर, योर आंसर इज करेक्ट अमृतपाल. ठीक है जी. तो डेसिमल ये यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डिजिट है, मीन्स कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. क्या है? क्योंकि मेरे को डेसिमल के बाद कोई डिजिट चाहिए ही नहीं. आई विल ट्रंकेट ऑल दी डेसिमल प्लेसेस. तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एक ये इंटीजर वैल्यू रह जाएगी मेरे पास. क्लियर? ये सिंपल है हमारे पास दिस राउंड एंड ट्रंकेट. क्योंकि राउंड एंड ट्रंकेट ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, दैट्स व्हाई इनको मैंने साथ साथ करवा दिया है. एक और जो मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास दैट इज द पावर फंक्शन. सिलेक्ट पावर. ये रेज टू पावर के लिए है. 2 रेज टू पावर अगर हमारे पास 4 है फ्रॉम डुअल. सो हु विल ट्राई टू आंसर दिस वन? रेज टू पावर 4 is So 16. yes. So 2 raised to power 4 is 16. This is simple one. ठीक है. तो ये पावर कैलकुलेट करने के लिए है.
और लास्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन, दैट इज द मोड फंक्शन. So you all are familiar. 7,4 and people are again trying to join in. Yes, not the spellings are not correct. MOD. Yes, who will give the answer? जीवन आप रेस्ट करो. now try to इंद्रवीर आप भी रेस्ट करो. Look at the others who wants to answer other than both of you. We have today the biggest number present on the Zoom class. So this is the biggest number we are available with. So ये चैट के ऊपर एक आंसर आया है. चैट के ऊपर आंसर आया, Where is the table, sir? अमृतपाल टेबल भी बताएंगे अभी आपको. ये डमी टेबल है बेटा, डमी टेबल. ड्यूल टेबल जो होता है दैट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन और तीसरे के लिए है. दिस इज, ये ड्यूल टेबल का नाम ही है. तो इसमें मोड में मेरे पास क्या आंसर आएगा? द नंबर डिवाइडेड बाय 4 और मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 3. इसका दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड और उसका क्वोशंट आ जाएगा हमारे पास 1 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3. तो अब मैथमेटिकल फंक्शन में आफ्टर सिलेबस रिडक्शन के बाद यही 3 हमारे पास फंक्शन है. नाउ वी विल टेक ए टेबल. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से आई टेक द टेबल एम्प्लॉय. ठीक है जी, ये हमने एक टेबल ले लिया है. ठीक है जी. तो इस टेबल के अंदर वी विल ट्राई टू यूज फ्यू ऑफ दी तो हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं. टेक्स्ट फंक्शन जैसे है हमारे पास अपर एंड लोअर फंक्शन. तो जैसे मैं अपर फंक्शन जो है ये ई नेम के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं. एम्प्लॉय नेम, आई वांट टू बेसिकली कन्वर्ट दी एम्प्लॉय नेम इनटू कैपिटल 1. तो उसके लिए क्या सिंटेक्स बन जाएगा? सिलेक्ट यू केस हमारे पास फंक्शन है. यू केस हमारे पास फंक्शन है, यू केस एंड देन इज मेरा कॉलम नेम है ई नेम एंड फ्रॉम माय टेबल नेम इज एम्प्लॉय. और इससे क्या हो जाएंगे? मेरे सारे एम्प्लॉय नेम जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस. यू केस स्टैंड्स फॉर अपर केस. ठीक है. ऐसे ही मैं अगर मैं इनको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फंक्शन है हमारे पास एल केस. ठीक है. तो यू जस्ट ट्राई टू रन दिस वन. तो ये नेम जो है एम्प्लॉय नेम, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस. ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है, ये यू केस की जगह हम लोअर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लोअर एंड अपर. ठीक है जी. बाकी और कौन सा फंक्शन है हमारे पास? टेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास लेंथ फंक्शन. सो यू वांट टू फाइंड द लेंथ. select length of, let's say, e name from employee and you will get their length. जैसे रवि है तो उसकी लेंथ क्या आ रही है? इसमें 4 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, 4. मंजू के केस में क्या आ रही है? ये 5. सिमिलरली if some other attribute is there, एम्प्लॉय के केस में और कौन सा था हमारे पास? बाकी तो सिग्निफिकेंट है.
क्लियर? तो ये था हमारे पास दिस द लेंथ फंक्शन. वी हैव few more functions with us. One is L-trim. L-trim is basically the left side से जो हम ट्रिमिंग करना चाहते हैं. L-trim and R-trim. Yes. Select. So this incorrect parameters, because in case of a L correct, that is the left trim, ठीक है? तो ये लेफ्ट ट्रिम काम कैसे करता है? सेलेक्ट L trim. यस. तो यस, इसकी आउटपुट पता चली है किसी को, ये L trim कैसे काम कर रहा है? ये लेफ्ट ट्रिम क्या करता है? बेसिकली लेफ्ट ट्रिम जो लेफ्ट साइड पे जो लीडिंग स्पेसेस होती हैं उसको रिमूव करेगा. ये जैसे ये नवदीप कुमार नाम से स्ट्रिंग है, तो इसके अगर लेफ्ट साइड पे कोई स्पेस है तो उस स्पेस को ये रिमूव कर देगा. ठीक है? और जैसे फिर से हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं और इसके राइट साइड पे भी स्पेसेस डाल देते हैं. ठीक है? तो इसकी अब राइट साइड पे भी स्पेसेस हैं. अब आप इसको राइट क्लिक करो तो राइट वाली तो वहां पे दिखाई देंगे नहीं हमें. बट अगर मैं अब इसके ऊपर क्या करता हूं, L ट्रिम की जगह मैं यहाँ पे इसके R ट्रिम यूज करता हूँ, राइट ट्रिम. क्लियर? तो इसमें अब राइट साइड पे जितनी स्पेसेस हैं दे विल गेट रिमूव्ड. क्लियर? और मैं अगर इसकी जगह I apply this now. फंक्शन, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से जो लीडिंग स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा. तो ट्रिम फंक्शन इज जस्ट बेसिकली इज देयर to remove the spaces either from the left side or from the right side, or if we want to remove the spaces from the both sides, so then we will have to make use of the trim function. ठीक है? तो ऐसे ही हम कॉलम के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि वहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई स्पेस, स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस है या नहीं है हमारे पास. What are the other functions we have? थोड़े से functions ही हमारे पास. That is, one is there in string. सिलेबस भी है मैंने रखा हुआ अपने पास, so that we can check it out कि कौन कौन से फंक्शंस है हमारे सिलेबस में. एक सब स्ट्रिंग भी है और एक इन स्ट्रिंग भी है. सो इन स्ट्रिंग जो है इट इज बेसिकली फॉर दी सर्च पर्पस. ठीक है जी? फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग में से
इसका मैं सिंटेक्स अभी आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। व्हाट इज दी सिंटेक्स इज, इसका सिंटेक्स है हमारे पास इन स्ट्रिंग जो है दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और इसमें हमारे पास स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो ये क्या करेगा, चुप रहे। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये स्ट्रिंग 1 में से जो स्ट्रिंग 2 का कोई भी एलिमेंट हमें हमारे पास सर्च होकर आएगा, सो देन इट विल गिव इट्स लोकेशन, उसकी पोजीशन ये हमें बताएगा। ठीक है जी। तो जैसे हम इसको अगर हम ट्राई करके देखते हैं, जो हमारा टेबल था एम्प्लॉय टेबल, तो लेट अस से वी अप्लाई इट ऑन सिलेक्ट लेट से हम इसको इन स्ट्रिंग को नेम के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। दैट वाज एट्रीब्यूट था हमारे पास ई नेम। ई नेम के अंदर हम सर्च कर लेते हैं क्या एम्प्लॉय नेम क्या क्या था वहां पे। एक तो रवि था मेरे हिसाब से, सो रवि के लिए लेट्स से वी मेक इट एट VI। ठीक है जी। सो एज कुछ भी हम इसका हेडिंग दे देते हैं, लेट्स से सर्च दे देते हैं इसका हेडिंग, फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। तो ये उसने सर्च करके हमें बता दिया है कि जो रवि नाम है, ठीक है, तो उसमें थर्ड लोकेशन पे VI आ रहा है, और दूसरे नेम के अंदर हमारे पास VI नाम का कुछ ऐसा स्ट्रिंग है ही नहीं। So you're not sharing your screen. ओके ठीक है। तो जैसे अभी हम यस नाउ यू आर एबल टू सी दिस वन। Yes. ठीक है। तो हमने क्या किया है, प्रीवियस स्टेप के अंदर ये इन स्ट्रिंग नाम से फंक्शन का यूज किया। इन स्ट्रिंग क्या होता है, इन स्ट्रिंग में दो पैरामीटर है हमारे पास, ये पहला पैरामीटर है, ये सेकंड पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर में से सर्चिंग होगी, सर्च ऑपरेशन लगेगा इस पैरामीटर के ऊपर, और सेकंड पैरामीटर के ऊपर वो क्या करेगा, जिस चीज को हमने सर्च करना है। जैसे मेरे को पता है कि ई नेम के अंदर एक रवि नाम भी है, तो रवि के लिए मैंने क्या रख दिया, VI को मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसका मैंने हेडिंग रख दिया, इसका हेडिंग मैंने रख दिया ये सर्च, डबल कोट्स के अंदर एज सर्च रख दिया इसका नाम। और किस टेबल के ऊपर मैंने ये ऑपरेशन लगाया है, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। तो ये जब मैं सर्च कर रहा हूँ, ये इसको रन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ये आंसर आ रहा है 3 and 0। ये 3 and 0 क्यों आ रहा है, ये देखो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉय थे, रवि, तो रवि के अंदर VI कहां पे आ रहा है, VI आ रहा है थर्ड लोकेशन के ऊपर। और मंजू नाम में तो मंजू के अंदर VI तो है ही नहीं, तो दैट्स वाई इसकी लोकेशन कौन सी आ रही है, 0 लोकेशन आ रही है। तो ये फंक्शन था हमारे पास इन स्ट्रिंग। ठीक है जी। इन स्ट्रिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्चिंग समथिंग इन ए स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली बड़े डाटाबेस के ऊपर इसकी फंक्शनैलिटी पता चलेगी। ठीक है। ये छोटे से टेबल के अंदर जहां पे हमने 2 रोज एंटर की हुई हैं, तो वहां पे इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है दैट लुक्स वेरी इजी, कि हम लोग ये तो खुद ही सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू टेक इट ए बिगर डाटाबेस फॉर दिस। सो ltrim और ltrim, rightrim और trim फंक्शन, और ये इन स्ट्रिंग, ये क्लियर है फंक्शन, कोई डाउट है इसमें किसी फंक्शन में? ओके, आई थिंक सो दैट No doubt, sir. बाकी हमने कर लिया है न्यूमेरिक। एक है हमारे पास सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग मीन्स बेसिकली किस पार्ट को हम, we will do it with the help of this MySQL। ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन है सिलेक्ट सब स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ फंक्शन। सब स्ट्रिंग मीन्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग।
और हमारे पास स्ट्रिंग है लेट्स से इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। तो मैंने इसकी लोकेशन दे दी, इसकी मैंने लोकेशन दे दी है लेट्स से 7,10। तो स्टार्टिंग 7th पोजीशन से लेके 10th पोजीशन तक का ये स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग को ये रिटर्न करेगा फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम द ड्यूअल टेबल। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिकली दी कैसे आया ये हमारे पास स्ट्रिंग। सर इसमें 7th पोजीशन से लेकर वहां से काउंट करते शुरू करते हैं, 10 लेटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हाँ 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 10 लेटर्स वहां तक, यस यस 7 to 10 नहीं है, 7 से लेके 7 + 10 है इसका मीनिंग। ठीक है, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 7th Yes, पोजीशन sir. एंड गो अप टू प्लस 10 मोर कैरेक्टर्स। सो दैट्स लेंथ 10 है। लेंथ 10 है इसकी। ठीक है, एक और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, दैट इज वी मूव इट टू लेट 10 की जगह इसकी जगह 15 कर देते हैं एंड वी ट्राई टू रन दिस वन। यस, तो दिस इज 7 प्लस मींस 7th पोजीशन से है, 7th मींस 5 तो इंडिया में हो गए, 6th ये हो गया हमारे पास स्पेस, और 7th कौन सा आई, तो ये 7th से लेके नेक्स्ट 15 कैरेक्टर्स को ये लेके चलेगा। और आई थिंक अगर हम इसको 17 कर दे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही आ जाएगा हमारे पास। Yeah, so who is trying to write this? Hello, trying to use this annotate property. So ये थोड़े से फंक्शन है आज के लिए, that the functions we have tried for the day। ठीक है, so ये MySQL के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। so एक दिन हम वी विल ट्राई फॉर दी MySQL की एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम वी विल ट्राई टू डू विद दी विच वन फॉरेन की के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आ जाना फॉरेन की का। ठीक है, तो उसमें हम 2 टेबल लेंगे, एक स्टूडेंट टेबल और एक फैकल्टी टेबल। तो स्टूडेंट टेबल को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि इस स्टूडेंट को कौन सा टीचर जो है वो टीच कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यू हैव एनी क्वेश्चन, सो विल ट्राई टू आंसर दिस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मिड और सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आता है। किसमें? मिड फंक्शन एंड सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो ये सेम ही है, मिड फंक्शंस का भी ये और ही लिखा हुआ है, दोनों के बीच में और ही लिखा हुआ है, मिड एंड सबस्ट्रिंग बोथ आर सेम। अब बुक भी मेरे पास ही पड़ी हुई है, बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, और दिस आइदर यू कैन यूज सबस्ट्रिंग और यू कैन यूज द मिड फंक्शन। तो दोनों सेम ही है, दोनों की आउटपुट सेम ही आएगी। यस, सो ये थोड़े से स्टूडेंट्स जो हैं जैसे इंद्रवीर है, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है पाइथन के अंदर, वो हमने एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम पांडास वाले फंक्शंस को यूज करेंगे। जैसे सुखजीवन आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई वी आर डूइंग डिस्क्रिप्टिव फंक्शंस। तो डिस्क्रिप्टिव फंक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा तो थोड़े से बेसिक फंक्शन हमें यूज करने पड़ेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज that you start working on the project or try to look for some real life data, जिस डाटा को हम वो CSV फाइल में हो या एक्सेल फाइल में हो, किसी भी फाइल में हो, जिस डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग पांडास। ठीक है, पांडास को यूज करके हम MySQL को भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी टेबल में पड़ा हुआ है डाटा उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। So soon in the next couple of weeks we will be able to work indefinitely on a concrete project। आप लोग भी जो आप लोगों का इंटरेस्ट एरिया है उस तरह का आप डाटा आप सर्च करते रहो साथ साथ में, so that इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हार्डली 1-2 दिन में हमारा प्रोजेक्ट जो है सभी का वो प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार हमें अच्छा सा डाटा मिल जाए
और डाटा सभी का डिफरेंट होना चाहिए, सेम डाटा को एनालाइज नहीं करना सभी ने। ये ना हो कि हमें एक डाटा मिल गया, सारी क्लास ने वही प्रोजेक्ट बना लिया तो सारे पकड़े जाएंगे। तो हमने क्या करना है, एनालाइज सभी ने करना है बट डाटा सभी का डिफरेंट होगा। सो यू गॉट द आइडिया। तो आप साथ साथ में प्रोजेक्ट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा काम साथ साथ में करते रहो। सो थैंक यू वेरी मच गुरकरण। Yes, sir. Sir, I have one more doubt. यस, पूछो पूछो। Sir, left and right functions नहीं करवाए आपने, left and right. हाँ, अभी हमारे थोड़े से फंक्शन रह गए हमारे पास। विल कवर दी फ्यू ऑफ दी फंक्शंस। अब हमारे पास थोड़े से टेक्स्ट फंक्शन रह गए हैं, थोड़े डेट फंक्शन रह गए हैं। So few of the date functions and text function we will cover in the upcoming lecture. Yes, sir. और plus the foreign key constraint। अगर किसी को foreign key constraint में डाउट है so please attend the tomorrow's class। इसको बार बार नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। So thank you very much for the day। Thanks। Thank you, sir. Thank you।